Uh, जी ठीक है, let's मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है तो let's बस। move to the next slide. A bit of introduction for both of us. I am Naeem Iqbal. I'm a certified project manager, business analyst, and I've done PSM also, certified Scrum Master. I normally work on mega projects and programs on behalf of the government of Pakistan. To name a few, Citizen Damage Compensation Program, National Immunization Management Program, Safe City Islamabad. I'm also a certified happiness coach. That's an interesting certification to have and to work on. I can be contacted. You can have my profile on this QR code. And with me today is Naveed Ramzan. Naveed साहब आप खुद बताएंगे, ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे? जी थैंक यू वेरी मच नईम साहब, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। वेल ऑल, दिस इज़ नवीद रमज़ान। तकरीबन 16-17 साल से आईटी इंडस्ट्री में ही हूँ। इस्लामाबाद रावलपिंडी में ही ज़्यादा अरसा गुजारा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ITIL एंड PSM सर्टिफाइड हूँ। डिफरेंट डोमेन्स में काम किया है, लाइक ई कॉमर्स है, CRM है। करंटली मैं AT टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड हूँ एज इंटीग्रेशन लीड। हेल्थ से रेलेवेंट NHS के साथ हम काम कर रहे हैं, NHS के फीचर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और मुझे आप इस QR कोड के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं या naveedramzan.com को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आई थिंक जितने लोग अवेलेबल हैं उन सब का हमने इंट्रोडक्शंस डिस्कशन थोड़ी सी कर ली है। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट टुडेज वेबिनार, वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट इज एजाइल पीके। एजाइल पीके का विजन क्या है, मिशन क्या है, व्हाट वी डू, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन 2014 को 3-4 यंगस्टर्स ने सोचा कि वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द फ्यूचर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. So the vision we have is to see Pakistan emerge as the world leader in fast-paced, technology-driven world. And to achieve that vision, we have a mission to build and foster a thriving ecosystem for agile community in Pakistan. And that community includes professional organizations, individuals, resources, academia, students, everyone who is somehow linked with projects, with businesses, with project management. To achieve that mission, we have what we do, or what our objectives. We connect agile community, we conduct training programs, workshops, seminars, webinars. We identify, engage, and promote community leaders. We engage and involve companies like you're involved right now. We reduce the gap between academia, industry, and government. Sometimes we have sort of focus group discussions with academia and with industry, what industry is looking for and what academia is providing. अगर उसमें कोई gaps हैं तो उसको कैसे fill किया जा सकता है. Just to give you an example, हमारी efforts से अभी Zabist इस्लामाबाद ने अपने जो project management courses हैं उसमें as a course, full fledged course agile technologies को they are the final process of approval उसमें शामिल कर रहे हैं. So that is a big change और हम उसमें हम efforts कर रहे हैं. हम different organization के साथ भी collaborate कर रहे हैं, different bodies, scrum.org, Scrum Alliance, पाकिस्तान में पाशा के साथ, ओपन इस्लामाबाद के साथ, बहुत सारी communities के साथ we try to sort of build collaborations. हम नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करते हैं, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स रन करते हैं. वी नॉर्मली every year we have a flagship event called ACP, Agile Conference, and this year we have on 25th of December. Please lock the dates. It's an online event. 25th of December we have an Agile marathon where we will have local, international speakers, and we're going to talk about how we can achieve better results by somehow applying agility. So that is a short introduction what Agile PK is doing in Pakistan. Moving forward, I would just request you, it's very, very simple ground rules. We need to respect each other's opinions, be respectable. I always believe, I'm a teacher, I'm a trainer, I'm a project manager. I always believe that
there cannot be a one-man show. You are all experienced people. You can have your own opinions. You can have your own experience. We have 20 people right now. And if I take 20 years as an average age, so it's a 400 years of experience sitting in this Zoom room. It means that collectively we can share our experiences, and those experiences can be very different from one another. But just try to see what we can learn out of it. And you may ask as many questions as you want. We will try our best to answer your questions, whatever we can. Moving forward, let's talk about, अभी एक question भी आया था कि agile है क्या? Before we go on, anyone want to reply? आपके ख्याल में what is agile? What is the dictionary definition of agile? Anyone? Hello. मेरे ख्याल में if I would say that agile basically एक I mean set of practices हैं जो कि आपको, या मतलब methodology है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जिसमें आप कोई भी चीज़ मार्केट में अर्ली जब आप मार्केट में लाना चाहते हैं तो आप इन एजाइल मेथडोलॉजीज को यूज़ करते हैं when you want to move faster again when you want to move faster in the market. Okay, and anyone else? अच्छा, इसमें अगर मैं ऐड करना चाहूँ जी मैं ऐड करता हूँ उसमें ये कि जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मेरी जो फील्ड है वो HR की फील्ड है, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टूल है। और एजाइल जो है एक्चुअली जिस तरह एजिलिटी की हम लोग बात करते हैं, ये वो चीज़ हो रही है कि हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को जल्दी में कैसे कर सकते हैं, जल्दी से कैसे कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मली एक वर्ड यूज करते हैं जल्दबाजी। मैं जल्दबाजी की बात नहीं कर रहा, मैं जल्दी की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में एजिलिटी या एजाइल होना ये होता है कि आपने एक काम एफिशिएंटली करना है, गिवन टाइम से पहले करना है या गिवन टाइम में करना है, किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी टास्क को कंप्लीट करना। तो ये एक सिंपल जो डेफिनेशन जो मैं समझता हूँ ये है। अच्छा, I like the way you said the difference between jaldi and jaldbazi. I really liked it. Let's see what the slide is saying. What is agile? Agile is actually, literal meaning में लिया जाए इसको, तो it's just ability to move quickly. और दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं your ability to respond to change. In other words, in third meanings, it is your flexibility. ओके, मैं इसको ना थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इट्स अ बिट ऑफ अ क्रूड एग्जांपल, लेकिन मैं अक्सर ट्रेनिंग्स में एग्जांपल देता हूँ. मेजॉरिटी ऑफ यू वुड हैव योर ओन व्हीकल्स. आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, यू आर ऑन 120 और 130 और 100, और आपको सामने रोड पे कोई चीज पड़ी हुई नजर आती है. व्हाट डू यू डू? प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द टाइम you just turn the wheel और आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. जस्ट इमेजिन आप 100 पे जा रहे हैं और आपने टर्न लिया है और आपके सामने कुछ चीज आई है. यू विल स्टिल ट्राई योर बेस्ट कि आप थोड़ा सा व्हील टर्न करेंगे ताकि ना या तो वो दरमियान से गुजर जाए वो चीज या किसी साइड से गुजर जाए. दैट इज योर रिफ्लेक्सेस, दैट इज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू चेंज. ओके, अभी आपने बात की कि किसी एक ने बात की, it is not only about the projects. Just forget about the project for a moment. Ability to respond to change or your flexibility is required in your life. Just imagine doing anything. If you're not flexible or you cannot respond to change quickly, you'll be gone. We'll have examples in next slides. So it's not only about the projects, it is about the business. It is about your life, right? Your personal life, your professional life. तो आपको क्विक तो होना है. अच्छा, आप क्विक होने को, चेंज को क्विक रिस्पॉन्ड करने को, फ्लेक्सिबल होने को आप अपने बेनिफिट के लिए कहां इस्तेमाल कर सकते हैं. वन ऑफ देम इज कि आप उसको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर लेते. चल, हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं. इफ यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Who is this guy? Anyone knows? Anyone? Usain Bolt.
He's the It's slowest battery. person on earth. He's the slowest person on earth. Probably the fastest. He's the fastest person on earth. So one of his trait is agility, fast, being fast. And then there's another guy. What is his trait, or what it looks like? Looks like Formula the 1 F- racer. Formula One driver. Formula One driver. Again, we're talking about responding to change. We're talking about speed. We are talking about fast. We're talking about jaldi, not jaldbazi. Okay, let's move forward. Nokia. What comes to your mind? Gone. Failure. They Slow did to not change. respond to the change. Non-adaptive. Non-adaptive. They did not respond. Slow. अगर आप में से कुछ लोगों को शायद याद हो, there was a time जब mobile phone was equal to Nokia. Nokia was the market leader. They were the ones जिनके पास phones होते थे और phone company थी. अब what happened? They did not see what is coming in the future. They could not see actually. और जब change आई, they were not flexible enough, and then they are simply gone. If any of you remember the tears in the eyes of the CEO of Nokia, and he was saying that we didn't do anything wrong, but what's happened to us, the simple and one reason is that they were not flexible enough to change. And on the right side, we have another company, Microsoft. They are responding to change. They were responding to change. Majority of you are sitting youth here. I still remember Windows 95 and Windows NT when we were early users. And you just remember Windows NT and 95 or something and Windows 11. There's a huge difference. There's a huge flexibility in it. There's a huge change in it. So what we're talking about a couple of minutes earlier, कि अगर हम flexible नहीं होते, अगर हम change को respond नहीं करते, तो we are gone. There are a lot of companies in this world. The one other example is the Kodak. I don't know if any of you remember. हमारे ज़माने में दूसरे कैमरा होते थे जिसमें 24 या 36 की फिल्म डलती थी और हम बड़ा सोच के कैमरे का वो बटन प्रेस करते थे कि यार ये 24 में से एक कम हो गई. And now when you go on vacation, you just click from your mobile phone, click without any counts. That's a change again. Or Kodak couldn't see that change and they just vanished from this business. So change को समझना और change को accept करना और respond करना is something very important. Whether you're an HR person, you are an accountant, you are a programmer, you are a businessman, whoever you are, it is something very important to respond to change. Okay, let's move forward. कि हम थोड़ा सा इसको इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं कुछ अगली स्लाइड्स पे. जब हम एजाइल की बात करते हैं, अभी किसी ने बात भी की थी थोड़ी देर पहले ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन, there are so many types of further drill down methodologies that are under the umbrella of agile. The left part is the lightweight approaches. जिसमें Scrum is the major portion. More than 50% of the companies who use agile methodologies, they use Scrum. And then the Kanban, extreme programming, continuous integration, continuous delivery. Again, depending on the company and the sector, on the organization, the type of projects you're doing, you can choose any of them. And then on the right side, there are fuller approaches, beyond one team. If you have teams on teams, Scrum of Scrums, and there's a lot more we're talking about here. इसमें आपको लेफ्ट साइड है, दे आर फॉर वन टीम. मेजॉरिटी अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो मेजॉरिटी लोग स्क्रम यूज करते हैं, बहुत कम कैनबैन और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी यूज करते हैं. There are certain companies जो स्क्रम बैन यूज करते हैं. अगेन कस्टमाइज्ड टेक्निक, स्पेशली टेराडाटा इज यूजिंग
Scrum ban. Again, this is a technique जो हम use करते हैं. Okay, moving next. हम थोड़ी सी बात करते हैं कि एजाइल मैनिफेस्टो क्या है. ये बात करने से पहले इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेके जाऊंगा. आप में से कुछ लोगों का जरूर एक्सपीरियंस होगा वर्किंग ऑन वाटरफॉल मेथोडोलॉजी, वर्किंग इन द सीक्वेंस, वर्किंग इन द फेजेस. जब हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोसेसेस एंड टूल्स. जब एजाइल की बात करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल्स एंड इंटरैक्शंस. So we put more emphasis on individual interaction than over processes and tools. Traditional में right side is important, agile में left side is important. Okay, moving next. Working software over comprehensive documentation. Again, I have experience working on the both sides of this. Traditional project management, yes, we talk a lot about processes, tools, comprehensive documentation, a lot of documentation. And Scrum or Agile was started as the lightweight processes. So more important is the working software or the working functionality or value addition, MVP, whatever you call it, over the comprehensive documentation. Customer collaboration over contract negotiation. We are talking about two different mindsets here. The same person can negotiate the contract and collaborate with the customer. So the mindset is changed. When you collaborate with the customer, it means you are one team. You are working on behalf of the customer. You are trying to satisfy what the customer needs. When you are negotiating the contract, it means it cannot be a win-win situation. You have to win over the customer. So we're not talking about the win-lose or lose-win. We are here talking about the win-win situation for both the parties. Moving next, responding to change or following a plan. जब हम traditional project management की बात करते हैं तो we normally try to discourage the change. हम कहते हैं हमने पूरा plan बना लिया है, अभी plan को हमें change करना पड़ेगा, change control board में जाएंगे, approval लेंगे, सारी चीजें change होंगी, तो you try कि ना change ना ही करनी पड़े. But here, actually, you are going to embrace the change. You are actually responding to change quickly. तो ये है ही change driven model. यहाँ पे customer किसी भी time पे कोई भी priority change कर सकता है, कोई भी feature set change कर सकता है, user story ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है. Again, it all depends on कि client क्या चाह रहा है. तो सी उर्दू की बात कर लेते हैं. हम अफराद और उनके बाहमी रवाबित को तरजीह देते हैं आलात और तरीक़ेकार पे. हम एक फाल चीज को तरजीह देते हैं जामे दस्तावेजात पे. हम सारिफ के साथ इश्तराक करते हैं ओवर तरजीह देते हैं बातचीत और मुआहदे पे. और हम चेंज या बदलाव पे रद्द-ए-अमल देते हैं, ना कि हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि बस एक जो मनसूबा बना लिया उसी को पैरवी करनी है और चेंज नहीं करनी. अब let me tell you, maybe some of you इनको थोड़ा सा ना ये strange लग रहा हो. The people who have been working for a couple of decades, they can relate much better. आज से 20 साल पहले जब इस तरह से emails, WhatsApp, Google नहीं होते थे, तो we used to write letters. लेटर में हमने बता दिया हमने क्या करना है, and then 15 दिन के बाद उस लेटर का जवाब आना होता है. Now in this digital era, you're sending emails, WhatsApp, communications, Zoom, WeChat, and you're getting responses on the same time. So things are changing fast as it used to come, it used to change in 20 years down the road, before 20 years. तो अभी change बहुत क्विक हो गई है. उस क्विक चेंज को अकोमोडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं करेंगे तो शायद हम जो है कम्पीट नहीं कर पाएंगे बाकी दुनिया के साथ. मूविंग नेक्स्ट, ये अगेन जस्ट एम्फेसिस के हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. इंडिविजुअल इंटरैक्शंस, वर्किंग सॉफ्टवेयर, consumer collaboration. It's all about the collaboration, not a solo flight, not the contract negotiation.
and responding quickly to change. So these are the 4 things that Agile teaches us. अच्छा, अब इन 4 चीजों के लिए it's not only कि ये 4 चीजें हम किसी कोर्स में पढ़ेंगे और हमें आ जाएंगी. There's a mindset behind it, और उस mindset को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, आप बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते. वो कंपनीज, वो लोग, वो रिसोर्सेज जो कंपनी में एजाइल लाना चाहते हैं, बेस्ट एडवाइस फॉर देम इज चेंज द माइंडसेट्स. कोलैबोरेशन के माइंडसेट पे जब हम काम करेंगे, बात करेंगे, तो शायद इट विल बी मच बेटर कि आप वो काम कर पाए. मूविंग नेक्स्ट जी. नॉर्मली these are some of the challenges that normally companies or resources face while working on projects. I'm sure आप लोग जितने यहाँ पे मौजूद हैं, they are like 28 people. Good. आप लोगों को तो ये इश्यूज नहीं आते होंगे, बिल्कुल भी नहीं आते होंगे. Anyone? Hello? मेरे ख्याल से ये I guess issues ये तो सारे मतलब हमारे ही पेन सारे- पॉइंट्स हैं. आप ही के पॉइंट्स हैं. अच्छा, बिल्कुल. गुड. अच्छा, आई थॉट कि आप लोगों को तो ये इसमें से कोई भी इशू नहीं आता होगा. चलें, आप ही के पॉइंट्स हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है. इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ आपके पॉइंट्स नहीं हैं. ऐसा नहीं है कि ये आपने ही बताया, डेफिनेटली हमें बताया है, बट ये वो कॉमन इश्यूज हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फेस, whether you're in Pakistan or in any part of the world. Majority of the teams face these issues. वो again किसी ना किसी सूरत में किसी को ये इशू कम आते हैं, किसी को ज्यादा आते हैं, लेकिन आते यही इश्यूज हैं. तो आज हमारी अगली जितनी डिस्कशन है वो इन्हीं इश्यूज को रिजॉल्व करने के अराउंड है कि हम कैसे इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप अपनी वर्किंग को बेहतर कर सकते हैं कि आपको ये इश्यूज ना आए. चले देखते हैं जी आगे के व्हाट इज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स. नवीद साहब, कैन यू कंडक्ट दिस एक्टिविटी प्लीज इफ यू अवेलेबल. जी जी बिल्कुल. जस्ट ओके जी. अस्सलाम वालेकुम जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है. देखें, इस एक्टिविटी को यूजुअली हम जब फिजिकल कर रहे होते हैं तो ये कुछ डिफरेंट अंदाज में होती है, बट यहाँ पे क्योंकि अब हम रिमोटली बैठे हुए हैं तो मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको एग्जीक्यूट करूँगा. मुझे ये बताइए सब लोग या रैंडमली कि जब हम किसी भी टीम मेंबर को मिलते हैं या किसी एक ऐसे बंदे को मिलते हैं जो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, हम किन चीज़ों की बेस पे हम उसको जज करते हैं? कोई 1-2 पॉइंट जो आपके माइंड में आ रहे हो, किस बेस पे हम जज करते हैं? Appearance and body language. अपीयरेंस एंड बॉडी लैंग्वेज. ओके. और कोई जो शेयर करना चाहें? Body language mostly. ओके. मेरे लिए it's the level of involvement they have in the discussion and the Okay. kind of involvement they have. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ओके. सो हम उसकी बेस पे ऑब्जर्व क्या करते हैं कि इस बंदे की ऐसी पर्सनैलिटी होगी, इसका थॉट प्रोसेस शायद ऐसा होगा, ये बात कहना चाह रहा था, ऐसा ही है. ठीक है. हम इन्हीं चीजों की बेस पे हम अपने पास एक माइंड में इमेज बना लेते हैं उस टीम मेंबर के लिए, या वो हमारा क्लाइंट है या वो कोई न्यू ज्वाइनिंग रिसोर्स है, जो भी है. इन चीज़ों की बेस पे हमने एक इमेज बना लिया, जो इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. यूजुअली क्या होता है कि हम कुछ अपने पुराने इवेंट्स को या मेमोरीज की बेस पे हम रिलेट करते हैं कि ओके, एक ऐसा आदमी पहले था, या शायद पहले एक आदमी ने ऐसे किया था तो ये भी शायद ऐसा ही ना हो. ठीक है. तो बेस्ड ऑन आवर मेमोरी या इवेंट्स जो हमारे साथ अकर हुए होते हैं, उनकी बेस पे हम एक नए बंदे को जिसको फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, हम एक इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में.
जो कि हमारे लिए कुछ हद तक फायदामंद होती है, कुछ हद तक नुकसानदेह होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक नया टीम मेंबर हमारी टीम में आया एंड लेट्स से कि वो बहुत ही आउटस्पोकन है, प्रेजेंटेबल है, तो हम कहते हैं जी बड़ा जबरदस्त बंदा है। बट लेट्स से कि जब हम उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वो शायद इतना वर्केबल या वैल्यू एडिशन वाला ना हो। ठीक है, अब उसकी बेस पे हम हमारे माइंड में एक इमेज बन जाएगा कि ओके यार इस बंदे से काम करके मजा नहीं आया। तो लेट्स से कुछ अरसे के बाद अगर एक और बंदा हमारी टीम में आता है जो कि आउटस्पोकन है, और हम अब हम डाउट में हैं, उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि यार ये बंदा भी वैसा ही ना हो जैसा पहले एक बार हमारे साथ हो चुका है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जिसकी बेस पे हम ऑनवर्ड अपने इमेजिनेशन बनाते जाते हैं, जो कि हमारी एक कह लें कि ट्रस्ट लेवल को डैमेज करती है। ठीक है, अब उसको हम कैसे कर सकते हैं कि हमें दोनों एंड से देखना है, क्योंकि हमने एंड रिजल्ट, हमारा रिजल्ट जो है वो है रिजल्ट ड्रिवन। हमारे साथ एक जो भी टीम मेंबर ज्वाइन करता है, हमने उसको पॉजिटिव वे में लेके चलना है। कोई बंदा ऐसा है जो लेट्स से डीमोटिवेटेड है या उसका माइंड नहीं है काम करने का, तो हमने उसको थोड़ा मोटिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू कि वो हमारे गोल के साथ अलाइन हो जाए और वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाए। ठीक है, ये कुछ 2-3 चीजें जो कि हम अपनी टीम बिल्डिंग के वक्त इस चीज को जरूर कंसिडर करें। एक और चीज है, वो लिखी नहीं है यहाँ पे, मे भी आप लोग जानते हो, जो 16 पर्सनैलिटीज हैं ह्यूमंस की, उसको आप लोग जरूर गो थ्रू करें। बल्कि मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि अपनी टीम के अंदर सब लोगों को उसका फ्री असेसमेंट एक फॉर्म अवेलेबल है गूगल पे, वो शेयर कर देता हूँ ताकि हर बंदे की पर्सनैलिटी टाइप का पता चल जाए। अब उसके साथ बात करने में या उसके साथ मुझे एग्जांपल्स देने में वो काफ़ी आसानी हो जाती है कि इस बंदे की पर्सनैलिटी टाइप क्या है और मैं इसको कैसे अपनी बात या अपने पॉइंट पे कन्विंस कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये कोट है चार्ल्स डार्विन की, इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट दैट सर्वाइव्स नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द 1% रिस्पॉन्स टू चेंज। तो ये बात तो कंफर्म है कि हम जब रिस्पॉन्स टू चेंज करेंगे तो ही हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बन पाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी ये कुछ चीजें हैं जो कि ऑलरेडी आप लोग कर रहे होंगे, पर जस्ट हम एक उसका रिकैप कर रहे हैं कि स्क्रम क्या है, उसके इवेंट्स क्या हैं, ताकि जो लोग अगर नहीं कर पा रहे फुली या जो भी जस्ट न्यू हैं तो उनका भी एक रिकैप सा हो जाए। ठीक है जी, स्क्रम क्या है? फ्रेमवर्क टू एड्रेस कम्प्लेक्स adaptive problems while productively and creatively delivering products of the highest possible value. बाकी भी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो ये बोल्ड हैं लाइक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, प्रोडक्टिवली, क्रिएटिवली, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज, स्क्रम फोकस्ड करता है ऐसे प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है। 1986 में दो मोहतरम थे, टकौची एंड नोनेका, उन्होंने कहा कि जी आपने फोकस करना है टेक अप रग्बी वाले स्टाइल में इंस्टेड ऑफ कि आप स्टॉप एंड रनिंग रिले रेस पे काम करें। ठीक है, रिले रेस क्या होती थी कि हम 100 मीटर एक रिसोर्स भागता था, बाकी 3 वेट कर रहे होते थे। ठीक है, वो बैटल दूसरे बंदे को देता था तो वो एक भागता था, बाकी 3 वेट कर रहे होते थे। रग्बी में हम क्या करते हैं, एक गोल होता है और सारे लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो इन दोनों ने कहा कि जी हमें अपने प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो आईटी के हैं या जो भी हैं, इनको अचीव करने के लिए यही स्ट्रेटजी रखनी होगी। 1994 में इन्होंने थोड़ा सा इसको फॉर्मलाइज किया। स्कमिंग स्टार्टेड एट एजल कॉर्पोरेशन। ये इन्होंने एजल कॉर्पोरेशन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया एंड दे वर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। 1995 में जेफ एंड शॉबर जो थे, इन्होंने इसको ऑप्सला में प्रेजेंट किया और एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की शक्ल दे दी। 2001 में इन्होंने एजाइल मैनिफेस्टो बनाया और 2020 में इन्होंने अपनी जो स्क्रम गाइड थी उसको रिवाइज किया एंड इट्स बीन नाउ 25 इयर्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई विद रिस्पेक्ट टू कल्चर, विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज, विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट्स, विद रिस्पेक्ट टू पीपल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें गाइड करती हैं जो कि डिफरेंट हमारे जो चैलेंजेस आते हैं वहाँ पे ये कस्टमाइजेबल होती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये ओवरऑल एक स्क्रम फ्रेमवर्क का एक हाई लेवल ओवरव्यू है। इसमें अगर हम देखें तो ग्रीन में सारे हमारे रोल्स हैं, लाइक स्टेक होल्डर्स हैं, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, डेवलपमेंट टीम है। येलो में हमारे सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, लाइक प्रोडक्ट बैकलॉग है,
स्प्रिंट बैकलॉग है, डेफिनेशन ऑफ डन है और रिफाइनमेंट या इंक्रीज डॉक्यूमेंट है। ब्लू में हमारे सारे इवेंट्स हैं। जो बड़े वाला सर्कल है स्प्रिंट इटसेल्फ एक हमारा इवेंट होता है, उसके अंदर फिर हमारे 4 मीटिंग्स चल रही होती है, जैसे स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है, डेली स्क्रम मीटिंग है, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग है, स्प्रिंट रेट्रो मीटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं एम्पेरिकल प्रोसेस। एम्पेरिकल प्रोसेस क्या होता है जी? कोई शेयर करना चाहेंगे इसकी डेफिनेशन या जो उनके माइंड में इसकी डेफिनेशन या उसके माइंड में इसका जो आइडिया आ रहा है? एम्पेरिकल प्रोसेस Empirical process is basically a process where you learn by the experience back mostly. एग्जैक्टली स्क्रम जो है वो भी यही फोकस करता है कि आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो चीज़ें लर्न कर रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करें और अपने जो आपके कह लें कि नेगेटिविटी की जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें आपकी यूटिलाइज नहीं हो रही, इट्स सॉर्ट ऑफ वेस्ट, उसको आप इम्प्रूव करें। ठीक है, तो हम क्रिएट करते हैं, फिर पहले प्लान करते हैं, फिर क्रिएट करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं, फिर उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, इसमें 3 एस्पेक्ट्स आते हैं, कस्टमर टर्नओवर, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड रिक्वायरमेंट्स चेंज। हम इन 3 चीज़ों की बेस पे अपनी लर्निंग इंप्रूव कर रहे होते हैं, लेसन लर्न इंप्रूव कर रहे होते हैं, एंड देन आगे ऑनवर्ड उनको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें 3 मेन पिलर्स आ जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी, हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है अपनी टीम के साथ, अपने क्लाइंट के साथ। इंस्पेक्शन, हमें हर लेवल पे इन चीज़ों को डिबग करना है कि कौन सी चीज़ हमारे फेवर में है, कौन सी चीज़ हमें आगे जाके मुश्किल में डाल सकती है। एंड थर्ड थिंग इज एडेप्टेशन, कि हमें अपनी जो भी लेसन लर्न है उनकी बेस पे हमने एडेप्टेशन भी करनी है। अगर हम इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मिस करते हैं, वी आर नॉट एजाइल। सॉरी फॉर द डोरबेल। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये डायग्राम आप लोगों ने काफ़ी जगहों पे देखी होगी, इसको हम क्विकली जस्ट ओवरव्यू करते हैं। स्क्रम फाउंडेशन जो है वो बेसिकली फोकस कराती है इंक्रीमेंटल एंड एटरेटिव पे। एटरेटिव मींस कि आप एटरेशंस कर रहे हैं, लाइक पहले में स्केच बना, देन आपने उसको कलर्स फिल किए एंड देन आपने उसकी कलर्स को फाइंड किया। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें इंक्रीमेंटल की, इंक्रीमेंटल में हमने पहले छोटे स्केल पे बनाया, देन उसको हम इनलार्ज करते गए। इसी तरह अगर हम एटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल की बात करें तो इसमें हमने दोनों एक्टिविटीज इन पैरेलल चलानी है, ताकि हम हर रिलीज में, अगर नहीं तो अल्टरनेट रिलीजेस में हम कोई ना कोई चीज डिलीवर कर सकें, ताकि हमारा जो कस्टमर है या जो क्लाइंट है उसको हम एक वैल्यू एडिशन चीज दे सकें। ठीक है, स्क्रम फाउंडेशन इन 5 की वैल्यूज पे फोकस करती है। नईम साहब, आप यहाँ से कंटिन्यू करना चाहेंगे? जी बिल्कुल कंटिन्यू कर लेता हूँ जी। थैंक यू नवीद भाई, थैंक यू मच। मैंने अभी से ना थोड़ी देर पहले आपसे जो बात की थी ऑन द माइंडसेट, आपको टूल्स आ जाएंगे, आपको स्क्रम थ्योरी पता लग जाएगी, आपको स्प्रिंट पता लग जाएगी, यूजर स्टोरीज बनाना आ जाएंगी, बट इफ यू डोंट इंकलकेट दीज वैल्यूज इन इंडिविजुअल्स, इन पीपल, इन टीम्स, तो आपके लिए ट्रू स्पिरिट में, ट्रू सेंस में स्क्रम को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी किसी पार्टिसिपेंट ने थोड़ी सी बात भी की थी कि हम कर तो रहे होते हैं लेकिन हम ना उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे होते। उसकी भी मेजर रीजन ये होती है कि हम हमारे बैक ऑफ माइंड पे कुछ चीजें ना चल रही होती हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। तो अगर हम इन 5 वैल्यूज की तरफ देखें तो स्क्रम वैल्यूज हैं क्या बेसिकली? फर्स्ट वन इज कमिटमेंट। Commit to achieve the goals of the Scrum team. Very important. It's not individual goal. It's not about one individual. It's not about a member. It's about the whole team. तो यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट all together चेंज हो गया। आप ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, 5 डेवलपर हैं, 3 टेस्टर हैं, 2 UI के बंदे हैं, उनमें से 2 बैक एंड डेवलपर हैं, 2 फ्रंट एंड डेवलपर हैं, DBAs हैं, व्हाटएवर। तो हर किसी का ना अपना गोल है कि मैंने क्या परफॉर्म करना है। यहाँ पे ना देयर इज नो रोल, देयर इज जस्ट वन थिंग कॉल्ड डेवलपमेंट टीम। सो एज अ टीम का जो गोल है उस गोल पे कमिट करना कि यस आई टेक पार्ट व्हाटएवर इट नीड्स टू डिलीवर फॉर दिस टीम। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक टीम की परफॉर्मेंस की बात हो रही है।
Second value is focus. Focus on the work and the goals of Scrum and Sprint. आप कभी नोट कीजिएगा, irrespective of projects and project management and Scrum and agility, just कभी नोट कीजिएगा कि जब आप ऑफिस में बैठे काम कर रहे होते हैं तो आप कितने काम एट अ टाइम कर रहे होते हैं, उनमें से कितने ऐसे काम हैं जो आप पेंड कर सकते हैं, उनमें से कितने ऐसे काम हैं जो ना भी करें तो गुजारा हो सकता है. तो नॉर्मली लोग ये फिनोमेना है कि दे आर नॉट फोकस्ड. They try to do multiple things. एक so called एक term है multitasking. मेरे नजदीक मिथनुमा term है ये multitasking. जब आप multitasking करने की कोशिश करते हैं ना तो आपका focus out हो जाता है. तो try to be focused on your goals, on your objectives. टीम के goals क्या हैं, उन पे focus होना है. Scrum के क्या हैं, Sprint के क्या हैं, आप Sprint में क्या deliver करना है. एक focused approach का होना बहुत बहुत important है. It's a core Scrum value. Third one is the openness. Agree to be open about all work and challenges with performing the work. देखिए टीम में क्या कहता है, डेवलपर कहता है, फ्रंट एंड डेवलपर कहता है मैंने अपना काम कर लिया है, अब ये बैक एंड डेवलपर का काम है. यूआई वाला कहता है मैंने डिजाइन बना लिया, मेरा काम नहीं है. ऐसा नहीं है यहाँ पे. You need to be open to help other. Why? Because it's not your goal, it's the team goal. हम बार-बार हम बात कर रहे हैं कि टीम का गोल है. टीम के गोल के लिए you need to open about work. अच्छा ठीक है, आप फ्रंट एंड पे काम करते हैं. If there's an issue on the back end, it's not getting resolved, you may lend a hand to resolve that issue. Respect each others to be capable and independent people. अगेन रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा ख्याल है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो आप सारे समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं. यू नो योर ओन कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वहाँ पे कितना रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स हैं आपस में लोगों के. ड्यूरिंग मीटिंग्स, ड्यूरिंग डिस्कशंस कितना रिस्पेक्टफुल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. आई थिंक यू ऑल नो दैट. एंड द लास्ट वन इज द करेज. स्क्रम टीम्स हैव द करेज टू डू राइट थिंग. अच्छा, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एट टाइम्स आप प्रेशर में आके क्या कोई ऐसी फंक्शनैलिटी तो नहीं बना रहे जो इवेंचुअली फिर टेक्निकल डेट में आएगी. कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो आपको यू शुड स्पीक अप कि यार ये काम ऐसे होना चाहिए. तो जो राइट थिंग करने का कॉन्सेप्ट है उसको करने का हौसला, करेज होना चाहिए. सो कमिटमेंट, फोकस, ओपननेस, रिस्पेक्ट एंड करेज, ये वो 5 वैल्यूज हैं जो आप अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना देते हैं. अच्छा, अब ये कैसे होती हैं? ये वी हैव कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग्स फॉर दैट, वी हैव सेशंस फॉर दैट, ओनली फॉर स्क्रम वैल्यूज, नथिंग एल्स. तो आपकी पर्सनालिटी में ये वैल्यूज कैसे ऐड होंगी? जब ये वैल्यूज ऐड हो जाती हैं तो आपको परफॉर्मेंस बेहतर नजर आती है. मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ. आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देयर बी पीपल विल बी वेरी कमिटेड. आप उस बंदे को काम दे दें, यू वुड नेवर हैव टू आस्क सेकंड टाइम और आपको काम मिल जाएगा. And then there will be people in your organization, maybe on the second seat, जिसको आपने एक दफा काम करना है, फिर 10 दफा बताना है और फिर काम फिर भी नहीं होना. So yes, commitment matters a lot. तो ये बड़ी लाइव एग्जांपल्स हैं जो आपके पास आपकी अपनी लाइफ में, आपके अपने आसपास आपको जरूर नजर आ रही होंगी. मूविंग फॉरवर्ड, हम बात करते हैं स्क्रम के जो 3 रोल्स हैं, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड डेवलपमेंट टीम. तो हम देखते हैं कि इन तीनों रोल्स में क्या क्या काम परफॉर्म होते हैं. स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर क्या काम है? ही शी इज द डिसीजन मेकर. क्रिएट द प्रोडक्ट विजन ओवरऑल कि हाउ प्रोडक्ट वुड लुक लाइक. रिफाइंस द बैकलॉग, चाहे वो उसके बिहाफ पे डेवलपमेंट टीम कर रही है, बट इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीओ के बैकलॉग रिफाइन होने. स्क्रम मीटिंग्स अटेंड करनी है, स्क्रम प्रोसेस फॉलो करना है, ये डिसाइड करना है कि रिलीज कब होगी, उनकी रिलीज प्लानिंग करनी है. कस्टमर के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशंस करनी है और टीम को बताना है कि हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट दिस होल प्रोजेक्ट. जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट विजन का, वो प्रोडक्ट ओनर के पास होता है. और प्रोडक्ट ओनर फिर आगे अपनी जो टीम है उसको बता रही होती है कि how we are going about this project. Moving forward, if we talk about the development team,
आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? What this picture is telling you about? Everyone supporting each other, working as a team. Collaboration. Everyone supporting each other. आप ये देखें कि अगर ये रोइंग हर बंदा अपनी मर्जी से कर रहा हो तो क्या होगा? कश्ती डूब जाएगी सर। डूब जाएगी। Ahsan Jamal साहब कहते हैं collaboration. Yes, so the development team have to work in a collaborative manner. उन्होंने as a team, हम जब shared goal की बात करते हैं, shared objectives की बात करते हैं, तो उनको एक gelled team की तरह synchronize होके, yes, वसीम सिंधु साहब कहते हैं synchronization, absolutely, synchronized way में उन्होंने जो भी sprint के goals हैं उनको achieve करना है। अच्छा, वो नहीं कर पाते या अगर mindset एजाइल नहीं होता तो फिर क्या होता है? दैट इज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड क्या बता रही है आपको? आई एम ग्लैड द लीक इजंट ऑन इन आवर एंड ऑफ द बोर्ड। कॉर्नर एरियाज देखते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं। ये इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये अक्सर स्टेटमेंट हम आईटी वाले कहते हैं, मैंने अपना काम कर दिया। इट्स लाइक सेम थिंग। डेवलपर कहता है मेरे पास तो चल रहा था। Naveed bhai, can you continue for 5 minutes, please? Okay, sure. जी बिल्कुल जी, हम इसी स्क्रीन पे अभी बात कर रहे थे कि अगर लेट्स सपोज कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो अगर सेम डायरेक्शन में और एक गोल के साथ अगर एफर्ट्स ना पुट कर रहे हो तो डेफिनेटली कश्ती तो खैर डूबेगी। और हम अपने ऑफिस में अगर हम देखें तो अभी जिस तरह कुछ एग्जांपल्स अभी हमारे सामने आ रही थी, जिस तरह मैंने कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है, या एक मोहतरम ने भी कहा कि डेवलपर अक्सर कहता है मेरी मशीन पे तो चल रहा है, तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू डिप्लॉय दैट मशीन टू क्लाइंट। तो डेफिनेटली फिर इसी तरह के चैलेंजेस आते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये एक टकमैन मॉडल है। जो लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अगर ग्रेजुएट या मास्टर्स हैं तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मॉडल है जो पढ़ाया जाता है। और इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। जब भी कोई टीम में नया बंदा आता है या एक टीम फॉर्म की जाती है तो वो एक इनिशियल लेवल पे पहले फॉर्मिंग चल रही होती है। हर बंदा एक दूसरे को असेस कर रहा होता है कि ये बंदा किस नेचर का है, कैसी उसकी पर्सनैलिटी है, किस तरह की चीज़ें उसको पसंद हैं या नहीं पसंद। दूसरा लेवल आ जाता है स्टॉर्मिंग, जिसमें फिर वो अपनी अपनी जो एक कह रहे हैं कि फीलिंग्स हैं या जो अपनी उनकी ऑब्जर्वेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता शेयर करने लगते हैं। वो लेट्स से अगर 10 बंदों की टीम है तो कोई 2 लोग आपस में इंटरेक्शन शुरू करेंगे, देन गो ऑन आहिस्ता आहिस्ता 3 लोग हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, एंड इसी तरह वो एक टीम की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आती है नॉर्मिंग। जब वो ग्रुपिंग शुरू हो जाती है, 10 में से 2 एक तरफ हैं, 3 एक तरफ हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्रुपिंग जो है ना वो अगले लेवल पे एक गोल ओरिएंटेड शुरू हो जाती है कि ओके वो 2 अपना काम कर रहे हैं, हम 3 अपना काम कर रहे हैं, तो लेट्स फोकस ऑन वन थिंग, इस वन गोल को हम अचीव करने की कोशिश करें। जब वो सारे एक गोल पे आ जाते हैं तो चौथी स्टेज आ जाती है परफॉर्मिंग। फिर वो जो परफॉर्मिंग है वो उनकी स्पीड का ग्राफ जो है ऊपर जाना शुरू हो जाता है। Adjourning, then definitely it's time to celebrate। फिर वो सेलिब्रेट भी करते हैं इन चीज़ों को, और उस वक्त वो एक दूसरे को इतना अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं कि दे नो ईच अदर वेरी वेल, एंड वो फिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि हमने अपने ऑफिस में ऐसे किया हुआ है कि इसकी एक बड़ी सी बना के ना तो एक कॉरिडोर में लगाया हुआ ताकि आते जाते हर बंदा अपने आप को ऑब्जर्व करे कि मैं लेट्स से इफ आई एम वर्किंग ऑन वन टीम तो मैं उस टीम में किस लेवल पे हूँ और मैंने मेरा अगला लेवल क्या है। इट मोटिवेट्स मी। जिस तरह अभी करंटली मैं, जैसे मैंने बताया था कि आई एम इंटीग्रेशन लीड, तो मैं 3 टीम्स में काम कर रहा हूँ। अब कुछ टीम्स ऐसी हैं जो आज फॉर्म हुई हैं तो मैं फॉर्मिंग स्टेज पे हूँ, कुछ टीम्स ऐसी हैं जिनमें मैं परफॉर्मिंग स्टेज पे हूँ, कुछ में ऐसा है कि मैं अभी नॉर्मिंग पे पहुंचा हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी टीम्स को, जो हमारी स्क्रम के 5 वैल्यूज हैं, उनको फोकस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आती हैं? अचीविंग द स्प्रिंट गोल। जो भी वो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में सेट करते हैं उन्होंने मिल के एक ही डायरेक्शन में रहते हुए उसको अचीव करना है। स्प्रिंट बैकलॉग बनानी है जो कि उन्होंने प्रोडक्ट बैकलॉग से पिक करनी है बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। एस्टिमेटिंग स्टोरेज एंड स्प्लिटिंग इनटू टास्क, ये काम टीम ने करना है।
प्रोड्यूस अ शिपेबल इंक्रीमेंट, पार्टिसिपेट इन ऑल स्क्रम सेरेमनीज। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज इन्होंने करनी है जिसकी बेस पे वो एक गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। उसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग द इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस है, आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेट टेक्निकल डेट। टेक्निकल डेट क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम अपनी स्क्रम जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं ये स्प्रिंट्स में हम टेक्निकल डेट को कंसीडर नहीं कर रहे होते। कोई शेयर करना चाहेंगे टेक्निकल डेट क्या है? तो मैं करना चाहूँगा यहाँ पे। जी प्लीज। अच्छा देखें, जनरली क्या होता है कि डेवलपमेंट टीम आप कहने की अपना काम कर रही होती है और डिफरेंट ज़माने में या डिफरेंट वक्त में डिफरेंट टीम्स किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को डेवलप कर रही होती हैं। फिर जैसे जैसे वक्त चेंज होता जाता है, नई से नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, लाइब्रेरीज चेंज होती हैं, डेवलपमेंट के वर्जन चेंज होते हैं, सॉफ्टवेयर के वर्जन चेंज होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि हर चीज़ को कूप अप करना जब आप कोई चीज़ को प्लान कर रहे हो। तो टेक्निकल डेट वो पुराना काम होता है जो कि या तो ऑब्सलीट हो चुका हुआ होता है, या वो वर्केबल फॉर्म में नहीं होता, या वो बीच में करके छोड़ दिया गया होता है, या वो चल रहा होता है मगर उसको ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत होती है। तो दैट इज अ टेक्निकल टर्म। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं भी अगर अपना को 10-15 साल पुराना कोड निकाल के देखूं तो मुझे भी ये लगता है बात का ये मैंने लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा एक्सपीरियंस कुछ और था, अब मेरा थॉट प्रोसेस और एक्सपीरियंस कुछ और है, जिसकी बेस पे मुझे वो कोड अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हो सकता है 10 साल के बाद जो मैं आज कोड लिख रहा हूँ मुझे वो अच्छा ना लगे। उसको भी हमने कंसिडर करना होता है अपनी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में, और उसको फिर हमने रीवैम्प या जो भी उसके लिए अपडेटेड इंटीग्रेशंस करनी होती हैं वो हम फिर कंसिडर करते हैं। ट्रैक स्प्रिंट प्रोग्रेस, ये डेवलपमेंट टीम का काम होता है कि उन्होंने ये देखना है कि ओके एट एंड ऑफ द स्प्रिंट हमने ये यूजर स्टोरीज कंप्लीट करनी थी, कितनी हो गई हैं, कितनी रहती हैं, क्या हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। स्टेटस इन डेली स्टैंड अप मीटिंग्स, हेल्प पीओ, प्रोडक्ट ओनर इन टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स, ये सारे काम डेवलपमेंट टीम ने करने होते हैं। स्क्रम मास्टर, ये एक बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसको बहुत सारे लोग सर्वेंट लीडर भी कह रहे होते हैं। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ही इज द पर्सन जो कनेक्ट कर रहा है डेवलपमेंट टीम को, पीओ को और दैट ऑर्गेनाइजेशन को, और उस सारे इन सारों के अंदर स्क्रम फ्रेमवर्क को। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आ रही हैं। ओवरऑल जो एक हाई लेवल है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीच स्क्रम, ओके, फैसिलिटेट्स द मीटिंग्स, ओके, इंश्योर मीटिंग हैपन, ये चीज उसने मेक श्योर करनी होती है। कोचेज ऑन टाइम बॉक्सिंग, कि जो भी इवेंट है उसका जो भी टाइम डिफाइंड है मैक्सिमम उससे ज्यादा ना जाए, एंड ही इज सर्वेंट लीडर नो डाउट। वो एज अ चेंज एजेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो चेंज एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है, जो कि लीड एंड कोच करता है एजाइल को। एम्पिरिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट को उसको बता रहा होता है, समझा रहा होता है और उसी हिसाब से इम्प्रूव करवा रहा होता है। प्रोडक्ट ऑनर के साथ गोल एंड स्कोप डेफिनेशन में काम कर रहा होता है, जिसमें गोल जब टीम के साथ बैठ के वो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग करते हैं तो उसके अंदर फिर वो रिवाइज भी हो जाता है उसका। प्रोडक्ट बैकलॉग मैनेजमेंट बहुत क्लोजली पीओ के साथ बैठ के वो कर रहा होता है। टीम के साथ एम्पेडिमेंट्स को रिमूव करना, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम को बनाना, प्रोडक्टिविटी उसको देखना है, कौन सा बंदा अगर आज डाउन है उसकी क्या रीजन है, वो कुछ हेल्प कर सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो छुट्टियों के पैसे काट लिए तो आज मेरा मूड डाउन है, तो स्क्रम मास्टर का ये बनता है कि वो थोड़ा सा उसको मोटिवेट करे, फिर कुछ पॉलिसी ऐसी इवेंट करने की कोशिश करे कि अगर एक बंदा आउट ऑफ द स्कोप जाके काम कर रहा है तो उसकी डिडक्शन कम से कम हो, लाइक दैट। ये एचआर वाले भी तो बता सकते हैं। हाइपर प्रोडक्टिव करना होता है टीम को। ठीक है, तो इसके मल्टीपल रोल्स के साथ इंटरेक्शन हो रही होती है और हर डिफरेंट रोल में डिफरेंट एक्सपेक्ट में इसने काम करना होता है। स्क्रम मास्टर के पास ये 3 चीजें करने की अथॉरिटी होती है, जिसमें एक ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन होती है जो कि प्रोसेस की कर रहा होता है, डिसीजन ले रहा होता है टीम के बिहाफ पे और फिर टीम उसको सपोर्ट करती है, इसलिए ये टीम के साथ मिलकर ही डिसीजन ले रहा होता है। ठीक है, डिलीवरी डेट्स ये नहीं कमिट करता, वो टीम कमिट करती है, उस वक्त टीम के साथ ये भी बैठा होगा। एज अ फैसिलिटेटर, ये डज नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप और लेक्चर,
is an active unbiased member, skillfully assists group to understand common objectives, guides and helps to achieve common objective without taking side. ठीक है, थोड़ा अनबाइस्ड है और सर्वेंट लीडर है, हेल्पफुल है, सपोर्टिव है। इसमें स्किल्स क्या होनी चाहिए जिसकी बेस पे ये फैसिलिटेटर के रोल में आएगा। कोशिश करें कि जितनी भी मीटिंग्स हैं वो सारी टाइम बॉक्स्ड हों, एक्स्ट्रा टाइम में ना जाए, ब्रेनस्टॉर्म करवा रहा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ फोकस कर रहा हो, क्रिएटिविटी की तरफ फोकस कर रहा हो और अगले बंदे की अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्स कर रहा हो। ठीक है जी। फैसिलिटेशन इन डिसीजन मेकिंग, बात का ऐसा होता है कि टीम्स के अंदर ना आप डिसीजन नहीं कर पाते, तो वहां पे फिर ये 4 बड़े वेल नोन मेथड्स हैं। आप अगर कोई और भी यूज कर रहे हैं दैट्स आल्सो फाइन। फिस्ट ऑफ 5 है, डॉट वोटिंग है, थम्स अप थम्स डाउन, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। बट इसका जो फोकस होता है वो होता है एस्टैब्लिशिंग ग्राउंड रूल्स, हैज नो ओपिनियन, अनबाइस्ड, ट्रीट इक्वली एंड स्किल रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट। ठीक है जी। सर्वेंट लीडर का रोल होता है जहां पे इसकी जरूरत है वहां पे इसको होना चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लें या हम लोग अक्सर ऐसा कर जाते हैं, हमसे मुराद हम पाकिस्तानी या जो ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग हैं, कि स्क्रम मास्टर जो है हम उसको एज अ टीम मेंबर वो अपनी यूजर स्टोरीज भी साइन कर रहा होता है कि अच्छा मैं 4 आवर्स स्क्रम मास्टरी करूंगा और 4 आवर्स मैं अपनी यूजर स्टोरीज को डेवलप करूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर कोई बंदा या कोई रिसोर्स छुट्टी पर है एंड ही इज मोर देन कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं ये इतने ही टाइम में कर लूंगा, देन ही शुड डिग, अदरवाइज जरूरत नहीं होती इसकी। ये 10 कैरेक्टर्स हैं जो कि एक सर्वेंट लीडर में या स्क्रम मास्टर में होने चाहिए। ठीक है, ये सारे ही हम सब जानते हैं। हाँ, हम बाज़ ओवर इसको कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, एक अलग बात है। ठीक है, स्प्रिंट प्लानिंग, ये जस्ट एक 1 स्लाइड फॉर 1 इवेंट है ताकि हम कुछ चीजें रिवाइज कर लें या कोई अगर न्यू रिसोर्स हमारे साथ बैठे हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग क्या है जी? हमने इसमें गोल डिफाइन करना है, टीम ने डिफाइन करना है, अपने स्प्रिंट बैकलॉग की यूजर स्टोरीज लॉक करनी है, स्प्रिंट के स्टार्ट होने से पहले करना है। इसके अंदर हम टाइम बॉक्स होती है, लाइक 1 वीक की स्प्रिंट है तो 2 आवर्स, और उसी हिसाब से हम इसको आवर्स जो है वो उसके सेट कर रहे होते हैं। लाइक अगर 4 वीक्स का स्प्रिंट है तो मैक्सिमम 8 आवर्स तक होनी चाहिए। इसके अंदर कौन कौन लोग हो सकते हैं? इसके अंदर पीओ होगा, स्क्रम मास्टर होगा, टीम होगी, स्टेक होल्डर भी बैठ सकते हैं ताकि कहीं पे अगर टेक्निकल टीम क्वेश्चन करना चाह रही है तो दे कैन आंसर। मूविंग नेक्स्ट, स्प्रिंट गोल के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी उस स्प्रिंट का आप गोल बनाते हैं, हर टेबल पर या डेवलपमेंट टीम के जो टेबल्स हैं या जो सीट्स हैं वहां पे स्टिकी नोट्स में आप गोल को सामने रखें, क्योंकि आप जितनी बार बार देखेंगे आपका माइंड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस पर कमिटमेंट के साथ आएगा कि हाँ हमने ये अचीव करना है। दूसरा इवेंट होता है डेली स्क्रम या स्टैंड अप मीटिंग जिसको कहा जाता है। ये 3 ही क्वेश्चंस पे फोकस होता है, व्हाट वी डिड यस्टरडे, व्हाट वी विल डू टुडे, और कोई इम्पेडिमेंट्स है तो वो स्क्रम मास्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, देन एक डेडिकेटेड मीटिंग उसके लिए असाइन होती है। सेम प्लेस सेम टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि हर बंदे का एक माइंड बन जाए कि हाँ मैंने आज ठीक 4 बजे या 10 बजे या 11 बजे वहां पहुंचना ही पहुंचना है। 4 बजे भी स्टैंड अप्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग में ही होती हैं। लाइक इफ आई एम वर्किंग इन यूके एनवायरनमेंट तो हमारी मीटिंग 12 बजे हो रही होगी क्योंकि वहाँ 8 बजे होंगे। इफ आई एम वर्किंग इन यूएसए तो हो सकता है मेरे शाम के 6 बजे वहाँ 9 बजे हैं, ये जो भी टाइम डिफरेंस है तो उस वक्त स्टैंड अप मीटिंग हो सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, इसमें टीम मेंबर्स होंगे, स्क्रम मास्टर होगा। ठीक है, और ये मीटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं होती। हम अक्सर क्या कर रहे होते हैं कि मीटिंग्स को एक बंदा वो बताना शुरू करता है, अच्छा मुझे ये चैलेंज आया था, फिर मैंने ये ट्राई किया, फिर मैंने ये ट्राई किया। सॉरी, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट मैक्सिमम है इसकी टाइम लिमिट। तीसरा जो मेजर इवेंट आ जाता है वो आ जाता है स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, जो कि स्प्रिंट खत्म होने से पहले या मिड ऑफ द स्प्रिंट हम करते हैं, जिसमें हम ये ट्राई करते हैं ये जानने की कि जितनी नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज अब तक हो जानी चाहिए थी क्या वो हो गई हैं या नहीं हुई। इसके अंदर डेवलपमेंट टीम, पीओ, स्क्रम मास्टर और स्टेक होल्डर्स भी बैठ सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ साथ कर रहा हूँ तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको इन कर रहा हूँ। खैर, ये जो है इवेंट ये 1 आवर पर वीक के हिसाब से है। ठीक है, लाइक अगर 1 वीक का स्प्रिंट है तो 1 आवर, अगर 4 वीक्स का है तो 4 आवर्स है। ठीक है,
ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। ये स्प्रिंट के एंड होने के बाद हम करते हैं, क्लोज होने के बाद हम करते हैं। इसमें हम फोकस कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी गई, जो हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। ओके, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसमें स्क्रम मास्टर, डेवलपमेंट टीम, पीओ का होना लाजमी है। स्टेक होल्डर्स बहुत कम देखा गया है कि उनकी ज़रूरत हो, और ये जो है ये 1 वीक का अगर स्प्रिंट है तो 45 मिनट्स, और इसी रेशो से 4 वीक्स का है तो 180 मिनट्स। एज पर स्क्रम गाइड 2017 जो भी चीज़ें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है वो हम प्रोडक्ट बैकलॉग में डालते थे। कब हम उसको स्प्रिंट में लाएंगे ये तय नहीं करते थे, बट एज पर स्क्रम गाइड 2020 उसके मुताबिक ये है कि एटलीस्ट 1 से 2 चीज़ें, ये 25% ऑफ चीज़ें या 10% ऑफ चीज़ें हमने स्प्रिंट बैकलॉग में लाजमी लानी है, ताकि वो वेरी नेक्स्ट में इम्प्लीमेंट हो और हमें उसकी फीडबैक आना शुरू हो जाए। बाकी चीज़ें आप प्रोडक्ट बैकलॉग में डालेंगे। ये थोड़ा सा चेंज है इस हवाले से। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में क्या होता है। हम अचीवमेंट से शुरू करते हैं, क्या क्या अच्छा हुआ। यूज डिफरेंट एंगेजमेंट टेक्निक्स, डिवाइड चार्ट्स और स्टार्ट व्हाट वेंट वेल, प्लेस फीडबैक्स इन रिस्पेक्टिव एरियाज, रिपीट दिस अंटिल अनकंसिस्टेंट इन बिल्ड। ठीक है जी। कोई लाजमी नहीं है इसके लिए कोई टूल हो। ये एक हमारे मोहतरम हैं, उन्होंने अपने ऑफिस में रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग कंडक्ट की बगैर किसी टूल के। उन्होंने इसको इस फॉर्म में लिखा। काम वही है, व्हाट वेंट गुड, क्या हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पॉइंट ये है कि आप टूल की वजह से इसको स्किप ना करें। जो भी जैसी भी अच्छी मीटिंग है, अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आप उसको करें, ताकि वो एक आपके लॉग में आ जाए, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। स्प्रिंट कैंसिल हो सकता है, कौन कर सकता है? ओनली एंड ओनली पीओ, प्रोडक्ट ऑनर। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 केसेस बनते हैं जब स्प्रिंट कैंसिल होता है। या तो सारी की सारी यूजर स्टोरीज वापस स्प्रिंट बैकलॉग में जाएंगी, प्रोडक्ट बैकलॉग में नहीं जाएंगी, स्प्रिंट बैकलॉग में जाएंगी। दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि जो यूजर स्टोरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं उनको हम रिलीज में डाल दें, और जो नहीं कंप्लीट हुई उनको हम उठा के स्प्रिंट बैकलॉग में डाल दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जो तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि किसी यूजर स्टोरी का कुछ हद तक पार्ट हमने अचीव कर लिया, कुछ चीज़ें भी रहती हैं, तो वहाँ पे अगर पीओ कहता है कि ओके इस यूजर स्टोरी की ये जो 6 चीज़ें हो गई हैं ये मूव कर सकते हैं रिलीज में, तो आप वहाँ पे उसकी एक और यूजर स्टोरी बना के जो चीज़ें नहीं हुई उनको लिख के वापस ऐड कर देंगे स्प्रिंट बैकलॉग में, और जो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं उसके साथ वो यूजर स्टोरी आगे मूव हो जाएगी। मतलब आप उसको पार्शली आगे प्रोसीड कर देंगे। ये 2-3 वेरिएशंस बनती हैं, कहीं पे भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, मकसद ये है कि जितना काम हुआ है पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो डिप्लॉय हो। दूसरी एक्टिविटी आ गई है, ये आप सब लोग क्या करेंगे इसमें कि कुछ क्विज हैं जो हर बंदा अपने अपने पास कोई नोटबुक या नोटपैड में लिखता जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सही है या नहीं। एट एंड हम देखेंगे कि टॉप 3 पे कौन लोग आ रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा नॉलेज भी इसमें रिवाइज हो जाएगा। ये इसी के रूल्स हैं जो मैंने भी बता दिए हैं कि एवरीवन प्लीज कीप अ पेपर एंड अ पेन और नोटपैड। आप हर क्वेश्चन का लिखते जाएं, मेरा ये करेक्ट है या नहीं है, एंड लेट्स सी के मैक्सिमम मार्क्स क्या आते हैं। इसको आप पढ़ते जाएं, मैं जस्ट इसको बताऊंगा कि ये नेक्स्ट हम कब मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है जी, द स्क्रम मास्टर मैनेजेस द टीम। इसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स जो भी है अपने पास नोट डाउन कर लें। Okay, second question है, the sprint review is the meeting in which the product owner accepts or rejects the completed sprint product backlog items. Okay, third one is the daily scrum is a time for detailed problem solving. Okay, next, the ideal size for the development team is 5 to 9.
Okay, the next one is the sprint is extended when the work takes longer than expected. यहाँ तक हो गए हैं तो चैट में ओके या मैसेज कर दें कि जी ये स्क्रीन कंप्लीट हो गई, ताकि फिर हम आगे मूव कर जाएं। डन, गुड जी। वसीम सिंधु साहब, किंजा अंसारी, इदरीस खान ये कह गए हैं जी कि हमने डन कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड जी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके जी, माशाल्लाह काफी सारे लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे अब इसके आंसर्स आएंगे, तो आप सब लोग अपने आप को देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं या गलत हैं जी। ठीक है जी, नोट कर लिए जी कितने सवाल सही हैं और कितने गलत हैं। वेरी गुड जी। शहजाद कुरैशी साहब कह रहे हैं जी ऑल करेक्ट फॉर मी। वेरी गुड जी, माशाल्लाह। निशान हक साहब कह रहे हैं 100/100। ओके, गुड गुड। किंजा भी यही कह रही हैं। अदरीस कह रहे हैं कि जी 4/5। ओके, गुड। मोहम्मद आमिर के भी 4/5। गुड जी, गुड। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। ओके, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। राइट साइड पे उनकी या डेफिनेशन है या उनकी कोई ट्रेट है या एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है। हमने मैच करना है। लाइक प्रॉब्लम, सॉरी, प्रोडक्ट बैकलॉग, इसके साथ कौन सा वाला आएगा? ABCDEFGH, कौन सा वाला आएगा? अब लेट्स टेक 5 मिनट। इट्स 5:46, तो 5:50 पे मैं चेक करूंगा। आप तब तक इन सबको मैचिंग कर लें। ओके जी, 2 मिनट्स लेफ्ट। ओके जी, हादी हादी हैं वो, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कर लिया। वेरी गुड। इमरान सरवर खान साहब भी डन। वेरी गुड जी। एंड नाउ द लास्ट मिनट इज निशान हक डन। शहजाद कुरैशी डन। वेरी गुड, वेरी गुड।
अरसलान अली ने भी कर लिया जी, वेरी गुड माशाल्लाह। एंड 550 जी। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूँ, जिस पे जो इसके करेक्ट आंसर्स हैं वो आप खुद फिर उसको एनालाइज करें कि कितने आपकी मैचिंग सही रही और कितनी आपकी मैचिंग गलत रही जी। ये अपडेटेड स्लाइड है, इसको जरा देखें अब मैच करके। और बेशक चैट पे ही बता दीजिएगा कि कितने % मैचिंग हुई है। टोटल 8 डेफिनेशंस हैं हमारे पास। ओके जी, शहजाद कुरैशी कह रहे हैं 6/8, इमरान सरवर भी 6/8, ओके गुड। हादी 7/8, गुड। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। किंजा 8/8, माशाल्लाह वेरी गुड। अदरीस खान 5/8, वेरी गुड जी, वेरी गुड। वसीम सिंधु 5/8, ओके जी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये भी 5 क्वेश्चन हैं, ये भी आपने ही करने हैं। इसमें भी सेम वही पॉलिसी जो हमने फर्स्ट सेक्शन में रखी थी। Periodic testing sprints are the preferred mechanism for ensuring high quality. True है या false, आप लोग अपने पास नोट कर लें। Estimates are made for the development team by technical leads, managers or architects. True या false? A scrum master who works with more than one development team will be a bottleneck. True or false? A development team can change their process to improve efficiency. True or false? The Scrum Master can make priority decisions on behalf of the product owner. True or false? इसको कर चुके हों तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं जी। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। ओके, अब कितने लोगों के करेक्ट आंसर्स हुए हैं? मोहम्मद आमिर 5/5, ओके गुड। ऑल करेक्ट। शहजाद कुरैशी, साद 4/5, ओके गुड। इमरान सरवर, हादी 4/5, किंजा 4, सरमद कुमार खान 5, ओके जी माशाल्लाह। अब काइंडली वो पार्टिसिपेंट जिनके सारे क्वेश्चन सही हुए, 5 पहले वाले में, देन 8 मैचिंग वाले, देन 5 इसमें, जस्ट वो यहाँ पे इसको नोट कर दें कि जी मेरे सारे सही हैं। %90 चलेगा नवीन? नहीं नहीं हाँ, हम नहीं खेल रहे यार। ओके भाई थैंक यू। देखें, जब हम डिलीवरेबल की बात करते हैं तो 99.99% जो है ना, इवन दिस इज नॉट 100%। या दैट्स ट्रू, एग्री ऑन दैट। एनीवे आगे नेक्स्ट मूव करते हैं जी। मीनवाइल ये स्लाइड्स आपको अलीना फॉरवर्ड कर देंगी, सो यू गाइस कैन रिवाइज इफ नीडेड। और अदरवाइज हमारा ईमेल भी यहाँ पे दिया हुआ है, हर स्लाइड पे एंड पे भी है, तो वी कैन डिस्कस। अगर आप कुछ चीज डिस्कस करना चाहें दैट्स फाइन। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी के रिजल्ट्स आप लोगों ने अपने शेयर कर दिए, विच इज गुड। नईम भाई आप यहाँ से करेंगे आगे कंटिन्यू? जी मीर भाई बिल्कुल कर लेते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग चैलेंजेस राइट नाउ। जो हमने दूसरी तीसरी स्लाइड पे देखे थे कि क्या चैलेंजेस आते हैं। एक चैलेंज तो आता है टीम कमिटमेंट का। ये थोड़ा सा आई वुड रिक्वेस्ट के देयर आर 27 पीपल इंक्लूडिंग अस इन दिस रूम राइट नाउ। थोड़ा सा ना जस्ट स्पीक अप, थोड़ा सा जरा डिस्कशन करें कि ये टीम कमिटमेंट के क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज द चैलेंज ऑफ टीम कमिटमेंट फॉर यू। कोई शेयर करना चाहे आप में से, क्या को आता भी है चैलेंज इस तरह का आता है तो क्या नेचर है चैलेंज की? सर आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। मैं श्योर। ओके सर, जनरली होता क्या है कि हमारी टीम कमिटमेंट में जो हमें चैलेंज आता है वो कुछ इस तरह का आता है कि लेट्स से कि हमारी टीम में 4 बंदे हैं, 2 बंदे जो हैं वो बहुत लॉजिकल हैं, काम कर रहे हैं,
और जो 2 बंदे हैं वो इसी तरह से हैं कि वो काम तो कर रहे हैं मगर वो काम के अंदर जो वैल्यू ट्रांसलेट होनी चाहिए वो नहीं हो रही। जैसे मैं आपसे एक बड़ी छोटी सी चीज शेयर करता हूँ। मेरी एक डेवलपमेंट टीम मेंबर ने एक एप्लीकेशन को डेवलप किया, ठीक है, उससे जो जितना कहा गया उसने वैसा कर दिया। जब हमने आफ्टर लाइक 6 मंथ्स हमने उसके काम को ऑडिट किया और उसको हमने सिक्योरिटी चेक्स किए कि इसकी कोड की क्वालिटी क्या है, तो बहुत मेजर गैप्स हमने देखे। हमने उसके काम को देखने के बाद ये चीज रियलाइज करी कि जो कोड उसने किया है वो स्केलेबल बिल्कुल भी नहीं है। और इशू क्या हुआ कि उसकी जो कमिटमेंट थी वो सिर्फ इतनी थी कि जो उससे कहा जा रहा है और वो करता जा रहा है। मीन्स के आप कहते हैं ना कि लाइक डोंकी वर्क नहीं करना होता। अगर कोई डेवलपर है उसको एज केसेस डिस्कस करने चाहिए, उसको अपने टेक्निकल चैलेंजेस करने चाहिए। इनफैक्ट एक्सेप्शंस के बारे में उसे पहले से पता होना चाहिए कि यार अगर ये केस होएगा तो क्या होना चाहिए। तो अगर वो टीम मेंबर हमारा बहुत ज्यादा हाईली कमिटेड होता विद द व्यू ऑफ या विद द पैराडाइम ऑफ क्रिएटिंग द वैल्यू, वो डेफिनेटली सोचता इन सब चीजों के बारे में। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो हमारी वर्क फोर्स है वो जनरली जब काम करती है तो वो भाई मैं तो अपनी जॉब पूरी कर रहा हूँ, मुझे जो कहा गया वो मैंने कर दिया, अब जिसने करना था या जिसने कहना था वो करे। मतलब वो जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है वो नहीं दिखती, बल्कि अपने सर से सो कॉल्ड आप अपनी टोपी उतार के किसी दूसरे को पहना दें। वेरी वेरी कॉमन स्टेक कह लें या वेरी कॉमन प्रैक्टिस होती है यहाँ पे। I got your point. इसका जो इम्पैक्ट होता है वो सामने दिख नहीं रहा होता, मगर इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे बड़ा सेवियर पड़ता है। क्योंकि जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, टाइम की, पैसे की, रिसोर्सेज की, जिसमें ऑफिस हो गया, उसका रेंट हो गया, उसकी सब चीजें, आपकी मशीन हो गई, जब 6 महीने बाद या 1 साल बाद उनको पता चलता है कि हमने जो चीज डेवलप की थी वो तो स्केलेबल ही नहीं है, वो तो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगा। कान भाई ठीक हो गया आपका पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। अमार आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मैं बस इसी हवाले से ऐड करना चाहता टीम कमिटमेंट के हवाले से। मेरे ख्याल में टीम कमिटमेंट के चैलेंजेस आपको, मुझे, ये किसी को भी तब आते हैं जब हमारी टीम में वो लोग जॉब कर रहे होते हैं, जब वो उसको पर्पस को समझ नहीं रहे होते कि वो किस लिए काम कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहते हैं, रोल भी नहीं बल्कि सिर्फ उस काम को कर रहे थे जो उनको दिया जाता है। जब तक उसको पर्पस को फुलफिल नहीं करेंगे या उसके अंदर कोई पोटेंशियल या कोई इस चीज को एंजॉय नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं करेंगे। एक मुझे इजाजत दीजिएगा, एक बड़ी उस एग्जांपल मैं भी दे देता हूँ। ये ऐसा ही है कि हमने कहा कि मेरा दोस्त आ रहा है, सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, जैसे मैं अपनी वाइफ को कहूँ कि मेरा कोई दोस्त आया तो चाय बनाओ, वो जो चाय बनेगी, और अगर मैं ये बताऊं कि तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं उनके लिए चाय बनाओ, तो दोनों काम ही है, लेकिन उसमें एक अमार भाई लगता है इस टाइम आपकी मिसेज आपके पास नहीं है, ये तो नहीं, मैं बताता हूँ, मैं लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा हूँ, मैं ये रिस्क ले रहा हूँ घर में बैठ के बात। वर्क फ्रॉम होम में इतना बड़ा रिस्क, फिर आप मुजाहिद हैं जनाब। दरवाजा बंद कर ले जल्दी से। वो बंद है। हाँ जी वसीम भाई, वो बंद है, बस ठीक है फिर। तो मैं बस ये ऐड करना चाहता कि पर्पस जब क्लियर हो ना टीम को, तो उनकी कमिटमेंट आप ले सकते हो, लेकिन अगर उनको पर्पस क्लियर किया तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको। इसमें मैं एक चीज, नहीं भाई अगर अलाउ करें तो जस्ट एक चीज कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये चैलेंज जो है ना, ये सेम इसी तरह का चैलेंज मुझे अपने ये भी करंट ऑफिस में ही, पिछले 2 साल से मैं इधर हूँ, वहां पे आया। तो थोड़ा सा मुझे आइडेंटिफाई करने में टाइम लगा, बट आई केम टू नो कि जिस रिसोर्स से, जिसका माशाल्लाह 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है, उससे जो चीजें एक्सपेक्ट की जा रही हैं वो नहीं बन पा रही। द रीजन इज ही इज नॉट अ प्रोग्रामर, ही इज अ कोडर। वो कोडिंग के हवाले से सिर्फ सोचता है, उसको जो कह दिया जाता है वो कर देता है, लेकिन वो एक होता है ना कि आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ, अच्छा ये ऐसा हो सकता है तो मैं इसको अभी ऐसा बनाऊं, ये चीज भी एक बात जगहों पे देखी जाती है कि हम जो रिसोर्स है
शायद उसकी पॉलिशिंग कह लें या उसकी ट्रेनिंग उस लेवल पे नहीं हुई होती, या उसका एक्सपीरियंस ही नहीं होता। एक्सपीरियंस से मुराद ये कि 20 साल एक ही जैसा काम करना और 20 साल डिफरेंट काम करना, तो एक्सपीरियंस में फर्क आ जाता है ना फिर यहाँ पे। तो दीज कुड बी द पॉसिबिलिटीज। मेरे साथ जो हुआ था उसमें तो मैंने फिर जब ये आइडेंटिफाई किया कि जी ये मोहतरम कोडर हैं, प्रोग्रामर नहीं है, तो फिर काम देने की नोयत थोड़ी सी चेंज कर दी, डिटेल थोड़ी ज्यादा देनी शुरू कर दी। एंड ही इज स्टिल ही इज माय टीम मेंबर, और माशाल्लाह बहुत प्रोडक्टिव है वो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब ये सारी बातें आप लोगों ने की, आप ये मुझे लग रहा था आप स्लाइड्स देख के कर रहे हैं। इनिशिएटिंग आइडेंटिफाइंग विजन नॉर्म्स एंड गोल्स, आपने कहा ना, पैशन की बात की, नोइंग ईच अदर की बात की। इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं ऐड करूँगा कि अगर आपको टीम कमिटमेंट के चैलेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि शायद टीम्स के दरमियान कोलैबोरेशन की कमी है, शायद क्लाइमेट ऐसा नहीं है जिसमें आप जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो उसमें डेटा की यूटिलाइजेशन कम है, टीम नेटवर्किंग कम कर रही है। अब यू हैव टू गिव सपोर्ट टू द टीम कि नेटवर्किंग, वो जॉन पीटर्स हैं, एक अमेरिकन ऑथर है लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन पे, वो कहता है लंच इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, हम सबको पता है लंच इज इम्पोर्टेंट। वो कहता है कि 365 अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास टू डू नेटवर्किंग। 365 दिन होते हैं एक साल में, तो एक साल में 365 अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास टू नेटवर्क विद पीपल। व्हेन यू नेटवर्क विद पीपल, you understand their problems, you understand their limiting beliefs, you understand कि वो क्या सोच रहे हैं, सभी नवीद भाई ने भी कहा। और when you understand, then you know the work environment changes. Now you know कि यार इस बंदे का तो ये इशू है, तो मैंने इसके साथ ऐसे काम करना है, इसको मे बी डेटा और चाहिए, इसको कोई डेटा ड्रिवन मैंने कुछ चीजें देनी है, मैंने इसको कोई डिटेल्स और देनी है, क्या इसको पता है कि व्हाट इज द टीम गोल्स, व्हाट आर द टीम नॉर्म्स, नहीं है तो हमने कैसे बताने हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें आप करते हैं तो इट रियली हेल्प्स यू आउट टू यू नो हैव मोर कमिटमेंट फ्रॉम द टीम। ये अगली स्लाइड पे जाते हैं। अच्छा, इसमें जो बड़ी यहाँ पे एक साहब ने कहा था दी फ्रॉम एचआर, तो ये एचआर के नॉर्मली चीजें हैं, आप अप्रिसिएशन लोगों को देते हैं, टीम स्टार्स अनाउंस करते हैं, मे बी यू कैन गो फॉर द फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, मे बी इवन प्रोवाइडिंग अ कंडुसिव एनवायरनमेंट टू द पीपल, हेल्प इन द टीम कमिटमेंट। उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इवन फॉर एग्जांपल आप वो स्पेशली वो लोग जो कपल्स काम करते हैं कि कंपनी में, वे शुड दे पुट देयर किड्स। अगर उनका जो डे केयर है वो 10 किलोमीटर दूर है तो आधा दिन तो ये सोचते रहेंगे पता नहीं क्या चल रहा है। एंड इफ योर कंपनी प्रोवाइड्स डे केयर तो प्रॉब्ली इट विल बी अ चेंज्ड एनवायरनमेंट। जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। तो आप लोगों को अनेबल कैसे करते हैं, उनको अप्रिशिएट कैसे करते हैं, उनको उनके रिवॉर्ड सिस्टम आपका क्या है, दैट ऑल्सो समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम, आई नो दैट, बट समटाइम्स इट रियली हेल्प्स कि आपकी जो टीम की कमिटमेंट है वो बेहतर हो जाती है, जिससे ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट करती है। मूविंग नेक्स्ट, लेट्स सी कि जी अच्छा अगला है, ये प्रॉब्लम हमें भी आता है। आप बीन डूइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर द लास्ट अराउंड अ कपल ऑफ डेकेड्स। स्कोप फाइनलाइजेशन के चैलेंजेस आते हैं, आपने भी ये बताया है। एट टाइम हम स्कोप क्रीप की तरफ चले जाते हैं, एट टाइम क्लाइंट को पता नहीं होता कि जी मैंने क्या, मुझे एग्जैक्टली स्कोप क्या है। मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ, स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेबसाइट डेवलपमेंट में। क्लाइंट है वो कहते हैं यार मुझे मजे की वेबसाइट बना दें। अच्छा, वो मजे की वेबसाइट क्या है, उसने फूड पांडा देखा होता है, उसका फर्नीचर का बिजनेस है, देयर इज नो लिंक, बट उसके जो ज़हन में नक्श है ना वो फूड पांडा है। वो कहते हैं बड़ी मजे की वेबसाइट है। I'm just giving you one example. It happens actually. It's not a make-up example. I'm sure people in IT industry and development, they must have came across this scenario कि यार एक मजा नहीं आ रहा। अब when you get this comment यार मजा नहीं आ रहा, it is like such a subjective comment कि आपको नहीं पता हो रहा कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। तो हम कैसे इसको कोप अप कैसे करना है। एट टाइम्स स्कोप जब
आप फाइनल कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट लिस्टेशन चल रही है, पर चीजें फाइनल हो रही हैं, उसमें ना यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू नीड टू प्रायोरिटाइज। जैसे हम एक मॉस्को टेक्निक यूज करते हैं, मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, तो जो प्रायोरिटी वाली चीजें हैं वो ऊपर होंगी। बी ट्रांसपेरेंट, जितना ट्रांसपेरेंट होंगे उतना शायद बेहतरी आएगी। You need to analyze the impact कि क्या काम करने का क्या impact होगा, and then you need to embrace the change. Especially जब जिस environment की हम बात कर रहे हैं, it's a change-driven environment. तो you actually have to embrace it कि अच्छा यार ठीक है, client हमें कुछ भी कह सकता है, client की priorities change भी हो सकती हैं, हमने उसको accordingly अपने आप को इसको tailor करना है. We have another slide on this scope finalization. इसमें you should involve the teams. It's not a solo flight again. Team काम करती है. आप ownership लोगों को दे सकते हैं. Especially at the time of requirement elicitation, it is a specialized job. You have to ask as many questions as you want and the right type of questions. आप जब मैंने आपका comment दिया ना कि यार मजा नहीं आ रहा, अब इसकी क्वांटिफिकेशन कैसे होगी? You might want to ask the close-ended questions or some question जिसमें आपको specific चीजें आए, objective चीजें आए. अगर आप subjective question पूछेंगे तो आपको subjective answer आएंगे जिससे आपसे scope finalize कर ही नहीं पाएंगे. आपको वो transparency और clarity आएगी नहीं कि what exactly is the requirement of the customer. तो ये बहुत सारे projects में, इवन ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा जो अगर आप ये देखें कि व्हाई प्रोजेक्ट्स फेल, तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट रीजन, परसेंटेज ऑफ रीजन कि जी हम रिक्वायरमेंट ही प्रॉपर नहीं समझ पाते, हम स्कोप ही फाइनलाइज नहीं कर पाते. व्हाई? बिकॉज वी डोंट आस्क द राइट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वी डोंट आस्क व्हाट इज रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से फिर जब हम फंक्शनलिटी बना लेते हैं फिर कमेंट आता है जी मजा नहीं आया इसका. क्यों? बिकॉज वो चीजें उस तरह से whatever the requirements of the clients वो हमने फाइनली नहीं की हुई होती. तो दिस इज समथिंग दैट वी सजेस्ट कि आप स्कोप फाइनलाइजेशन चैलेंज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं. एस्टिमेशंस में चैलेंजेस आते हैं. आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, जो आपके पास एस्टिमेशन के लिए जो डेटा अवेलेबल है उसकी क्वालिटी का कंप्रोमाइज है, आपने प्रोजेक्ट डिजाइन जो है वो ठीक नहीं है. There are too many stakeholders. Again, depending on your experience, okay, let me ask a question. Max number of stakeholders you ever worked with? Any count, any number in one project? Anyone? Minimum 3, sir. Minimum 3, maximum 10. Minimum 3, maximum 10. Anyone else? Max number of stakeholders you worked with in one project? Sir, around 10. I had been working in a software company which is a banking IT company. So we just have a complete team. They're all just claiming that they are all the stakeholders. So almost 10 people over there. Okay, okay. Anyone else? सर यहाँ पे एक सवाल है सर. स्टेक होल्डर की सर बाय डेफिनेशन तो काफी वाइड है. मतलब आपका जो कस्टमर है जो कि उसको यूज करेगा आपकी एप्लीकेशन को, वो भी एक तरह से स्टेक होल्डर ही है, राइट? Yes. तो अगर उस पूरे सेंस में बात करें तो फिर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स. नहीं, हम डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं. ओके, फिर सही है. Any other answer? Anyone else? More than 10? Okay. The max number of stakeholders on one project I've worked on was in 19 organizations. 19 organizations were as stakeholders. Team members were around 50, and indirect stakeholders, जैसे अभी ज़ीशान ने कहा, were around 15 million families. So again, when the number of stakeholders increase, things get complicated. Next point is the analogy-based estimation. मैंने 5 साल पहले हमने ये मॉड्यूल बनाया था, इस मॉड्यूल पे इतना टाइम लगा था, इतनी कॉस्ट आई थी, तो शायद अभी भी ऐसा ही लगेगा. This is analogy-based.
इसमें वो आपको एक्यूरेसी नहीं मिलती. Not factoring the dependencies right, again depending on your let's say आप ऐप की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं, let's say उसमें 3 रेगुलेटरी इन्वॉल्व हैं, 5 बैंक्स इन्वॉल्व हैं, और आपने डिपेंडेंसीज राइट तौर पे फैक्टर नहीं की हैं, तो your estimates would not be the right one. Unrealistic deadlines from the client, that is again there's a problem. तो हमें जो कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं और स्केड्यूलिंग एस्टिमेट्स हैं, दोनों में इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स डिले भी होते हैं और जो हमारी एस्टिमेशंस हैं वो भी ठीक नहीं होती. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका प्रोजेक्ट डिले होगा तो आपकी कॉस्ट भी ओवररन होगी. Most of the time, it's not necessary all the time, but most of the time, yes, it will be so कि आपकी cost overrun भी होगी. Let's see कि इसकी और क्या dimensions हैं. Again, अगर हम on time delivery की बात करते हैं तो uncertainty तो है ही है, एक element है. Client positivity, real time communication, lack of flexible timelines, ये चीजें भी आपको ज़हन में रखनी है. और सजेशंस हमारी तरफ से क्या हैं कि डिलीवरेबल आइटम्स और एस्टिमेशंस को अंडरस्टैंड करें, रीजंस को आइडेंटिफाई करें कि डिले की रीजंस क्या हैं, और आप इसको डिवाइड कर लें. ट्राई टू डिलीवर माइनर्स और स्मॉल, नॉट टू बाइंड फीचर टू बिग फीचर्स फॉर बिग रिलीज, नॉट टू बाइंड फीचर्स फॉर बिग रिलीज. जब आप स्मॉलर पीसेस में आते हैं यू बिकम क्विक. जब आप एक बड़े पीस की तरफ जाते हैं, आपको मैंने पूरा मॉड्यूल डिलीवर करना है, उस मॉड्यूल में 10 फीचर्स हैं, why can't you do it feature by feature? So if you wait for like whole module, it will be probably 7 sprints, and if you do it like 10 features, every feature maybe every sprint or every second sprint you are giving something valuable to the client. So that really helps you. जब client को कुछ नहीं मिल रहा होता तो क्लाइंट का एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा होता है. When you are continuously delivering something to the client, तो आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट का एंजाइटी लेवल नीचे आता है, कहेंगे अच्छा डिलीवर हो रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो things become easy. Set KPIs and measure the reasons of delay. जब आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बना लेते हैं, चीजें थोड़ा सा स्मूथ हो जाती हैं. और ये अब इसलिए तो कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव में you need to identify what are the problems. अब कौन सी ऐसी चीजें हैं you should stop doing it, और कौन सी ऐसी चीजें हैं you should start doing it. हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या रीजंस हैं, क्या कहीं पे कोई प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या हमें अपनी टेक्निक्स को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, क्या हम एनालॉजी बेस्ड एस्टिमेशंस कर रहे हैं, हमें कोई फर्दर एक और क्वांटिफाइड मेथड यूज करने की जरूरत है. ये सारी चीजें हेल्प आउट करती हैं टू ऑन टाइम डिलीवरी. Okay ji, moving next. Change again, I don't know how many of you have implemented changes in the organization and in projects. Change is always messy. ये वो वाला messy नहीं है, फुटबॉल वाला messy, it's very messy. तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी हैं, आपने लोगों को भी देखना है, आपने विजिबिलिटी भी क्रिएट करनी है, आपने मे बी यू आउटसोर्स सम थिंग्स, फ्लेक्सिबिलिटी भी देखनी है, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में भी देखना है. तो चेंज को स्टीयर करना इज डिफिकल्ट. चेंज को आपने मे बी चेंज चैंपियंस बनाने हैं, चेंज एजेंट्स बनाने हैं, चेंज को इवन पायलट करके वैलिडेट कराना है. ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है जब हम चेंज की बात करते हैं. चेंज जो है ना वो स्केली होती है, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, चाहे आप प्रोजेक्ट्स में कर रहे हो, टू अचीव समथिंग. तो आपको ना उसके लिए रास्ता बनाना है. रास्ता बनाने के लिए आपको वैलिडेशंस की जरूरत है, आपको चेंज चैंपियंस की जरूरत है, आपको लोगों को अपनी साइड पे लाने की जरूरत है, विजिबिलिटी क्रिएट करने की जरूरत है, फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है. तो ये सारी चीजें शायद हेल्प आउट कर सकेंगी. अनिल भाई नेक्स्ट स्लाइड. ये विंडो बंद कर दो बाबा, वो सामने आरटी वगैरह खड़ी हुई है. तो हमें असेस करना है चेंज के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करना है चेंज के लिए, प्लान करना है. वेरी इंपॉर्टेंट.
टू प्लान कि हमें चेंज को कैसे लेके आना है। हमें प्लान कर लिया, द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज कि हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैंने बहुत नोट किया इवन विद माय ऑर्गेनाइजेशन एंड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हम चेंज इम्प्लीमेंट तो कर लेते हैं लेकिन ना चेंज को सस्टेन नहीं कर पाते। तो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि चेंज सस्टेन कैसे होगी। जो आपने चेंज इम्प्लीमेंट की है, then you need to keep doing that change process, and if you can sustain the change, then we can say that you are successful in managing the change. Moving next, सबसे मुश्किल काम and सबसे आसान काम, depending upon how you do it, is the stakeholder management. ये बड़ी फेमस एक इंटरेस्ट पावर ग्रिड है जो हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी यूज करते हैं। वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो जिनकी पावर भी हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है, यू नीड टू मैनेज देम क्लोजली। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ योर प्रोजेक्ट। इफ यू हैव मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस और पावरफुल स्टेक होल्डर्स, दे माइट हैव कंपीटिंग डिमांड्स। यू हैव टू sort of collaborate with all of them to align the demands with the project. At times ये होता है कि एक स्टेक होल्डर एक डिमांड दे रहा है, दूसरी डिमांड दे रहा है, दोनों एक दूसरे के like 180 हैं। You cannot implement both things. तो आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस तरह से एजुकेट करना है, उस तरह से उनको कम्युनिकेशन करनी है कि आप अपना पर्पस सॉल्व कर लें और प्रोजेक्ट में कोई इशू ना आए। इसके लिए मुख्तलिफ काम करते हैं। कैन वी मूव टू नेक्स्ट वन? उसमें हम कैटेगराइज कर लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन सो को हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, कौन सो को क्लोजली मॉनिटर करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज दैट लिसन केयरफुली। You have to listen to the stakeholders, what they are looking for, what are their aspects, what are their point of views. Priority should be that stakeholder should be clear what they want. Ask close question again. आपने जब भी आपने clarity लानी है तो you have to ask the objective questions. And stakeholders को जब तक आप inclusive approach के साथ नहीं लाएंगे, सबको नहीं सुनेंगे, सबका ख्याल नहीं रखेंगे, तो it will be very difficult. Again, depending on the type of the project you're working on, it will be very difficult कि आपका project successful हो। अगर आप एक inclusive approach के साथ, including and collaborating with every stakeholders, listening to them, getting their requirements, knowing what they want, अगर आप ये काम नहीं करते तो बहुत problem हो जाएगा प्रोजेक्ट के गोल्स को अचीव करना। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट मैं ये कहता हूँ, हमेशा ये कहता हूँ कि इट इज द इजीएस्ट थिंग एंड इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऑन अर्थ, डिपेंडिंग ऑन द वे यू मैनेज योर स्टेक होल्डर्स। यू कैन डू इट इन अ वंडरफुल वे एंड यू कैन डू, आई मीन अगर आप नहीं कर पाते तो फिर बहुत, और स्पेशली इफ यू मिस अ स्टेक होल्डर इन एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट एंड एट द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट यू रियलाइज, तो बाज़ औक़ात बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस करनी पड़ जाती हैं प्रोजेक्ट्स में, जो sometimes you can't afford to do those changes. Moving next is I think Naveed bhai, can you continue from here? Okay, any questions from your side so far? Whatever we have been doing for the last 1.5 hours. मेरे end से एक question है, I would like to ask the question. जी सर, ये प्रैक्टिस होती है कि चेंज एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा से केसेस होता है बहुत। लाइक आप जब भी, अब जैसे मैं अपनी कंपनी में एजाइल अप्रोच लाना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि हम जो अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिवीजन जो बनाने जा रहे हैं उसमें एजाइल को फोकस करें। अब इशू कुछ यूं है कि हमारी कंपनी जो है वो सर्विस फोकस ज्यादा है, मतलब हम IT बेस्ड सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, बहुत हाईटेक रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं। वी आर द माइक्रोसॉफ्ट गोल्ड पार्टनर, बट स्टिल एजाइल के लिए हम थोड़े से रिलक्टेंट हैं। अब मैं ऐसी क्या टेक्निक इस्तेमाल करूं, मैं उनके सामने वो कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूं कि जिससे मैनेजमेंट कन्विंस हो जाए या जिससे मेरा काम आसान हो जाए टू adopt the Scrum, adopt the Agile mindset. What I should do for this? देखिए, it's not that difficult. You need to identify कि आपके problem areas क्या हैं, ठीक है? And then while talking to them or giving them presentation, you need to just quantify कि आपका ये problem इस वजह से है और इस approach से ये resolve हो जाएगा,
You can give success stories, you can give testimonials, लेकिन actually for an organization or head of organization, what matters कि उसकी जो problems है ना वो resolve हो जाए in a bare minimum cost. ऐसा नहीं है ना कि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए लेकिन वो आपको 50 गुना कॉस्ट पे रिजॉल्व हो, नहीं, बेयर मिनिमम कॉस्ट में. तो इफ यू कैन कन्विंस योर मैनेजमेंट कि यार ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स की ये रीजन है और ये सोल्यूशन है इसका, और उसको आप ये ना कहें कि जी हम नाउ फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग विल बी एन एजाइल कंपनी. नो, इट डजंट गो दैट वे. आप कहें कि जी लेट मी इंप्लीमेंट ऑन वन प्रोजेक्ट, लेट्स सी द रिजल्ट्स, एंड इफ द रिजल्ट स्पीक्स बाय देमसेल्व्स, we will implement in the whole company, and choose these small project, not the bigger one, with the wonderful stakeholders, not the problematic stakeholders. So implement on one project with a smaller team on a good small project and a wonderful stakeholders, get the results and show them the results, and they'll be convinced in like this. Thank you, sir. I got it. I got your point. Perfect. Okay, ji. Now moving next. I think this is all from our side. Just a couple of slides that what we offer from the Agile PK platform. So far, we have served like 35 plus companies, 5,000 plus resources trained, 10 plus companies consulted for Agile transformation, 100 plus training sessions conducted, 10 plus Agile coaches, trainers, and consultants we have with us. On the right side, you just see some logos. These are some of the companies that we are working with, and we have like so many more companies since 2014 that we help those companies to achieve the result. The same, Zishan, what we're talking about, we have done this with many companies that, you know, starting small and then scaling it up to the whole company, and they got wonderful results. And plus, what we do is that, can you move to the next slide, Nimit bhai? So we do Agile coaching, we do Agile project management, outsourcing. If somebody, you know, a company want to outsource, we manage on their behalf. We normally go for the customized training programs. We have Scrum Values Development Program, we have a Servant Leadership Development Program, we have Agile DevOps Training Program. So these are some of the value additions that Agile PK performs. Plus, what we do normally is that whatever we are teaching you, we are even trying to implement on ourselves, even on a non-profit way what we are doing. For example, let's just share you one thing, that even today, after this session, me and Naveed would have sort of an, retrospective, what we have done, what we should have done better. I mean, whatever the retrospectives, the details are, we will do it just to improvise ourselves and to perform better. So this is what we offer. If any of the companies are looking for further discussion, we can discuss online. You can contact us at contact@agile.org.pk. And with that, I think that's all from our sides. Naveed bhai, you want to say something? नहीं, आई थिंक जी कोई कमेंट्स नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, क्योंकि फ्राइडे को थोड़ा हेक्टिक डे होता है, बट फिर भी आप लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत थैंक्स फॉर दैट. मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स जो हैं उसकी मेल ड्राफ्ट की हुई है, अलीना को मेल कर दूंगा तो वो आपके साथ शेयर कर देंगी. इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन, क्यूरी, चैलेंज आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो इस ईमेल पे आप ईमेल कर दें, तो वी विल ट्राई कि हम उसका एक बेहतर आंसर आपको दे सके, जिसमें आपको गाइडेंस मिल सके, प्लस आपका जो इशू है वो अगर 100% नहीं तो एट सर्टेन लेवल पे रिजॉल्व हो सके. लास्ट थिंग इज कि इसकी रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है और वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी. वो भी अलीना आपको ईमेल कर देंगी, जो अलीना बेसिकली जो पाशा के बिहाफ पे हमें कम्युनिकेट कर देंगे. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. अपना ख्याल रखिएगा. हैप्पी वीकेंड. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Thank you ji. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Allah.